good morning to one and all present here. Myself, Amrit Singh, trained graduate teacher, physical and health education, Kendriya Vidyalaya Nagrota, present here to share the importance of National Sports Day to brief about Major Dhyan Chand, a hockey wizard. First of all, I would like to welcome our worthy Principal Sir, Shri Didar Singh Chahal, guest of the webinar, Dr. Vikesh Kumar, Director of Physical Education and Sports, Government Degree College, Jandra, Jammu. Respected parents, teachers and dear students, the National Sports Day is celebrated on 29th August every year on the occasion of birth anniversary of hockey legend Major Dhyan Chand, who is regarded as nation's greatest hockey player of all time. The greatest hockey player of India, Major Dhyan Chand Singh, worldwide known as Wizard of Hockey, was born on 29th August 1905 in Allahabad city. After getting a basic education, Dhyan Chand joined the Indian Army as the soldier in 1922. Major Dhyan Chand Singh was a true sports person. He was motivated to play hockey by Subedar Major Tiwari. He was himself a sports lover. Dhyan Chand started playing hockey under his supervision. Due to his outstanding performance in his game, Dhyan Chand was appointed as Lieutenant in 1927, and in 1932 he was promoted to Naik and Subedar in 1936. When he was captain of the Indian hockey team, later on he went on to become lieutenant captain and was eventually promoted to major. Major Dhyan Chand was such a great player of hockey that if the ball once struck in his stick, then it used to remove only after scoring the goal. This was the reason that once his stick was broken during a match to check whether stick has any magnet or something else inside or it or not. Major Dhyan Chand was the part of the 3-time Olympic gold medalist Indian hockey team. At the Berlin Olympic Games of 1936, Dhyan Chand was elected the captain of the Indian hockey team. Major Dhyan Chand had scored more than 400 international goals in his career from 1926 to 1948, while scoring nearly 1,000 goals in his entire career. So to give real tribute to such a legendary player, the government of India has decided to celebrate his birthday as the National Sports Day since 2012. Before this recognition, he has been awarded the Padma Bhushan Award by the Government of India in 1956, which is the third largest civilian award
in our country. National Sports Days also celebrated extensively at the national level. It is organized every year in the Rashtrapati Bhavan and the President of the country. It gives national sports awards to the respective winners who have enhanced the value of the tricolor flag all over the world. Under the National Sports Awards, players and former players are honored with many other awards like Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, Arjuna Award and Dronacharya. Along with all these honors, Dronacharya Award is also given on this day. After the death of Major Dhyan Chand in 1979, the Indian Postal Department also paid tributes to Major Dhyan Chand and issued stamps in his honor. As a tribute to him, the National Stadium of Delhi was also renamed Major Dhyan Chand Stadium, Delhi. Like other awards, Dhyan Chand Award is also given on this day. Our school achievements. It will be unjust with our Vidyalaya students if I do not mention their achievements in games and sports for this session 2019-20. Our Vidyalaya performance in games and sports was excellent last year. 59 boys and girls of our Vidyalaya participated at KVS regional level and brought laurels to Vidyalaya by winning 37 medals, including 23 gold, 9 silver and 5 bronze medals. 38 students of our Vidyalaya participated in KVS National Sports Meet in different games. In KVS National Sports Meet, our students win 1 silver and 3 bronze medals in Taekwondo and Judo. Kartik Sharma of class 10th won silver medal and was awarded a cash prize of 8,000 rupees. Kushi of class 11th, Parmeet of class 12th, Sushant Bharti of class 11th won bronze medal and were awarded cash prize of 5,000 each. Shriya Wazir of class 11th participated in School Games Federation of India. In the end, I am thankful to our worthy principal sir for guiding and supporting me and students in the field of games and sports. I am also thankful to Dr. Vikesh Sharma, guest of the webinar. I am also thankful to all my colleagues, parents and my dear students. Thanks you all. Jai Hind, Jai Bharat. केंद्रीय विद्यालय नगरोटा के शिक्षकों और विद्यार्थियों की तरफ से मैं इस राष्ट्रीय खेलकूद दिवस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय खेलकूद दिवस हर साल मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज उनका 115वां जन्म दिवस है।
जिसके उपलक्ष्य में पूरे देश में राष्ट्रीय खेलकूद दिवस मनाया जा रहा है। उसी तर्ज पर केंद्रीय विद्यालय संगठन के निर्देशानुसार केंद्रीय विद्यालय नगरोटा में भी हमने राष्ट्रीय खेलकूद दिवस को ऑनलाइन मोड में मनाने का निश्चय किया और इसके लिए सभी शिक्षक गणों ने कड़ी मेहनत की है और आपके सामने जो भी प्रस्तुतियां प्रस्तुत होंगी उन सभी को बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है। तो आपसे अनुरोध है कि आप ध्यान से सभी प्रस्तुतियों को देखें और इस खेलकूद दिवस को सफल बनाने के लिए हमारा सहयोग करें। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल भी कहा जाता है और हॉकी में भारत का वर्चस्व बहुत सालों तक रहा है। हॉकी में भारत ने बहुत सारे ओलंपिक मेडल जीते हैं और 1960 तक तो हालत ये थी कि भारत के अलावा कोई देश ओलंपिक गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया था। तो इतने गौरवमयी इतिहास वाले खेल और इतने गौरवमयी खिलाड़ी को जब सम्मानित किया जाता है खेलकूद दिवस मना के, तो मन को एक शांति, संतुष्टि और एक गर्व की अनुभूति होती है। और भविष्य में भी ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए और हमें अपने उन दिग्गज खिलाड़ियों, अपने उस दिग्गज खेल जिसने हमें इतना गौरवान्वित किया, उसके प्रति लगाव हमेशा बनाए रखना चाहिए। नेशनल स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य में आज केंद्रीय विद्यालय नगरोटा में विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां प्रस्तुत होंगी, जिनका प्रसारण हमारे YouTube चैनल द्वारा किया जाएगा। इसमें हमारे शारीरिक शिक्षा शिक्षक श्री अमरीक सिंह जी द्वारा वक्तव्य, प्राचार्य द्वारा वक्तव्य, एक एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा वक्तव्य तथा 2 छात्रों की प्रस्तुतियां भी सम्मिलित होंगी और एक शिक्षक की प्रस्तुति भी सम्मिलित होगी। इसके साथ साथ पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, उसके अलावा क्विज कंपटीशन, सभी का ऑनलाइन माध्यम से आयोजन किया जाएगा और आप सभी के सहयोग से निश्चय ही ये सारी गतिविधियां सफलतापूर्वक समय अनुसार पूरी की जाएंगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन एक उत्कृष्ट शिक्षा संस्थान होने के साथ साथ व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए विद्यार्थियों पे बहुत मेहनत करता है और वही मेहनत केंद्रीय विद्यालय नगरोटा में भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के निर्देशानुसार निरंतर की जाती है। जैसे कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, उसी तरह से जितना हमारे लिए पढ़ना लिखना जरूरी है, खेलकूद भी उतना ही जरूरी है। आज के समय में हमारे बच्चे बाहर वाले खेलों की बजाय, ग्राउंड में खेले जाने वाले खेलों की बजाय मोबाइल पे खेले जाने वाले खेलों की तरफ ज्यादा आकर्षित हैं और अभी कोरोना वायरस कोविड का समय होने के कारण भी बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो मेरा आप सभी अभिभावक गणों से, सभी दर्शकों से ये अनुरोध है कि बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज के लिए प्रोत्साहित करें और ऐसा करते हुए वो कोरोना वायरस के लिए जारी किए गए सरकारी दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और हो सके तो घर में ही योग या इंडोर एक्सरसाइजेस, इंडोर गेम्स उनको खेलें। बनस्पत इसके कि मोबाइल पे गेम खेली जाए, क्योंकि मोबाइल पे गेम खेलने से हमारे शारीरिक विकास का कहीं ना कहीं हास होता है, आंखों पे भी असर पड़ता है और दूसरी चीजों में भी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि बच्चों को घर पे योग करवाएं, बच्चों को घर पे आसन करवाएं, बच्चों को घर पे इंडोर गेम्स जो भी वो खेल सकते हैं, जो भी उपलब्धता है घर में, उसके हिसाब से बच्चे खेलें। और अगर बाहर भी जाना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान करके पार्क में, सड़क पे घूमा जा सकता है मास्क पहन के। इसी के अंतर्गत एक कैंपेन केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट भी चलाया जा रहा है,
जिसमें हमारे बच्चे एक समय सारणी के अनुसार एक सेक्शन एक दिन में वो फिट रन कर रहा है। एक बच्चा 1 किलोमीटर डेली चल रहा है अपनी सुविधा के अनुसार, अपने समय के अनुसार, और कहीं भी कोई इकट्ठ या गैदरिंग नहीं की जा रही है। और ये भी सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छा प्रयास है और जिसको हम तन मन से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे बच्चे और हमारे अभिभावक भी हमारा पूरा साथ दे रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय नगरोटा की स्पोर्ट्स उपलब्धियों की अगर मैं बात करूं तो हमने पिछले साल हमारा एक बच्चा SCFI में गया, 4 मेडल हमने नेशनल KVS गेम्स में जीते, 39 मेडल्स हमारे रीजनल गेम्स में आए और 59 बच्चों ने भाग लिया रीजनल में। तो हमारा विद्यालय अपनी संख्या के हिसाब से शारीरिक शिक्षा में एक उत्कृष्ट उदाहरण के तौर पे उभर रहा है और हमारे बच्चे ताइक्वांडो में, हैंडबॉल में, योग में बहुत आगे हैं और उन्होंने इसका एहसास हमें निरंतर करवाया है। और हमारे प्रयास भी हमेशा ऐसे रहे हैं कि बच्चे हमारे बहुत नेशनल लेवल तक, राष्ट्रीय स्तर तक खेलें और उसके अलावा अगर इंटरनेशनल स्तर तक भी जा पाए तो हम उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप सभी का सहयोग उसके लिए हमें चाहिए होगा, क्योंकि बच्चे को तैयारी का सही समय मिलना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं बहुत छोटे छोटे देश बहुत ज्यादा मेडल टैली में, ओलंपिक की मेडल टैली में या वर्ल्ड कप की मेडल टैली में हमसे बहुत आगे होते हैं, जबकि उनकी जनसंख्या हमारी राजधानी की जनसंख्या से भी कम होती है। ऐसा वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को वैसी तैयारी नहीं करवा पाते हैं जैसी तैयारी या जैसी डिटर्मिनेशन के साथ उन देशों के पेरेंट अपने बच्चों को तैयारी करवाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने प्रगति नहीं की है। यहां मैं अपने देश के एक छोटे से राज्य हरियाणा का उदाहरण देना चाहूंगा, जहां के बच्चों ने खेल कूद में रुचि दिखा के, अभिभावकों ने बच्चों को खेलों के लिए तैयार करके ये साबित किया है कि ओलंपिक मेडल जीतना हमारे लिए भी मुश्किल नहीं है। हरियाणा से कुश्ती में, भाला फेंकने में और एथलेटिक्स में भी बच्चे ओलंपिक तक खेलने पहुंच रहे हैं। तो अगर वो छोटा सा राज्य प्रयास कर सकता है तो हमारे बाकी राज्य भी प्रयास कर सकते हैं। और जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ही ज्यादा बच्चों में गुण हैं और खेल कूद के प्रति रुचि है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम इन बच्चों के लिए प्रयास करें और ये बच्चे जीवन में खेल कूद को एक कैरियर के तौर पे चुने और चुन के अच्छे प्रयास करने के साथ साथ आगे बढ़ें। और यहां मैं ये भी बताना चाहूंगा कि खेल कूद में बहुत अच्छे रोजगार की भी गुंजाइश रहती है। अगर बच्चा राष्ट्रीय स्तर पर किसी खेल में खेल जाता है तो बैंकों में, उसके अलावा और सरकारी नौकरियों में, पुलिस में, इवन के मिलिट्री में भी, आर्मी में भी उनको जॉब मिल सकती है। और उसके लिए एक निर्धारित कोटा सरकार ने फिक्स किया है। तो खेल कूदों से हमें ऐसा नहीं है कि बच्चे खेल कूद करेंगे तो उनको आजीविका कमाने में कोई दिक्कत रहेगी, ऐसा नहीं है। बच्चों की आजीविका का भी इंतजाम अगर बच्चा अच्छे लेवल पे खेलता है अपने आप होगा। अंत में मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं अपने शारीरिक शिक्षक श्री अमरीक सिंह, CCA इंचार्ज श्रीमती प्रीति शर्मा, संध्या शर्मा, पूनम और बाकी शिक्षकों का जिन्होंने क्विज कंपटीशन करवाना है, जैसे हमारी लाइब्रेरियन रुचि मैम, हमारे वर्क एक्सपीरियंस टीचर सुनीता रैना मैम, हमारे कला शिक्षक श्रीमती सुमन, इन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। इसके अलावा बाकी सभी शिक्षक जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, बाकी सभी विद्यार्थी जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
इस कार्यक्रम में भाग लेके इसकी तैयारी की है, और वो बच्चे जो क्विज कंपटीशन में और उसके साथ साथ पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में भाग लेंगे, उन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। और सबसे ऊपर मैं आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के इस आयोजन को सफल बनाने के लिए, हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस आयोजन में शामिल हुए। तो केंद्रीय विद्यालय नगरोटा परिवार, केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से आप सभी का इस आयोजन को सफल बनाने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को मेरा नमस्कार। इस सभा में उपस्थित प्रधानाचार्य, अध्यापकगण एवं सभी विद्यार्थियों को खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं फरजाना टीजीटी एसएसटी आज आपके सामने खेल दिवस के उपलक्ष्य में कुछ विचार लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यह कार्य करने और आप लोगों के संग अपने विचारों को साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज के इस समय में जहां एक तरफ हमारा देश और पूरा विश्व एक महामारी को झेल रहा है, उस समय में खेल की महत्ता अपने आप में और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ महामारी का नहीं है, यहाँ सवाल इस चीज़ का भी है कि खेल हमारे जीवन में किस तरीके से एक सकारात्मक भूमिका निभाता है। इन्हीं सभी विचारों को हम एक अच्छे विचार से शुरू करके और एक अच्छे तरीके से इनका विश्लेषण करके अपनी आज की इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। कहते हैं जान है तो जहान है। अगर इंसान में उसका अस्तित्व यानी कि उसकी जान या उसकी शारीरिक क्षमता या उसकी मानसिक क्षमता ही अगर ना रहे, तो व्यक्ति का जीवन संपूर्ण होते हुए भी अपूर्ण हो जाता है। व्यक्ति का स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ स्वास्थ्य और खेल का एक जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। खेल दिवस आज एक देश का राष्ट्रीय पर्व होने के साथ साथ देश के लिए एक गौरवान्वित करने वाला विषय भी है। खेल दिवस का आयोजन भारत में हर साल 29 अगस्त को किया जाता है। इस पर्व का हमारे लिए बहुत महत्व है। खेल दिवस को 29 अगस्त को ही मनाए जाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, या हम कहें एक बहुत गौरवान्वित करने वाला कारण है। इसी दिन हमारे राष्ट्रीय खेल के महान प्लेयर मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस होता है। उन्होंने अपने खेल से भारत का नाम तो ऊंचा किया ही, साथ ही भारत को खेल के स्तर में बहुत आगे तक भी पहुंचा दिया। मेजर ध्यानचंद जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने खेल को एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस रूप में एक विश्व स्तर पर पहुंचाया कि आज वो सिर्फ हमारे लिए स्वास्थ्य का ना होकर के एक राष्ट्रीयता और हमारे राष्ट्रीय सम्मान का भी एक महत्वपूर्ण कारक है। खेल जो एक बच्चे से लेकर एक बड़े व्यक्तित्व के रूप में आज एक करियर और समय को या अपने स्वास्थ्य को सही करने का एक कारक है, वहीं खेल एक साधारण भाषा में अगर हम देखें तो खेल एक शारीरिक क्रिया है जो विशेष तरीके और शैली से की जाती है। खेल की कोई परिभाषा नहीं होती है। खेल एक मनोरंजन है जिसमें हम अपने शरीर, अपने मानसिक और शारीरिक संतुलन को बनाए रखते हैं। लेकिन अगर हम खेल को परिभाषाओं में बांधने की कोशिश करें तो वो खेल फिर एक पूर्णतः नियमों के खेल में बनता है। लेकिन खेल, यहाँ पे हम जिस खेल की अब बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स, वो हमारे लिए एक राष्ट्रीय सम्मान का पहलू तो है ही, साथ ही हमारे स्वास्थ्य का भी महत्वपूर्ण कारक है। हमारी गवर्नमेंट ने विद्यार्थियों और बच्चों के कल्याण के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मानसिक और शारीरिक कौशल को सुधारने के लिए विद्यालयों और कॉलेजों में खेल को अनिवार्य कर दिया है। और खेल को केवल विद्यालयों में अनिवार्य कर देना ही काफी नहीं है। आप सब भी इस बात से बहुत अच्छे से परिचित होंगे कि विद्यार्थी या हम खुद जो एक बड़े का किरदार निभाते हैं, सभी की जिंदगी में
खेल एक खुशनुमा एहसास होता है जो हमें हमारे बचपन से, हमारी शारीरिक फुर्ती से हमें जोड़ देता है। सो हमें बच्चों और विद्यार्थियों और हमारे अभिभावकों को स्कूलों में ये बच्चों को इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो भी खेल में ज़्यादा से ज़्यादा अपना भाग या अपना प्रतिभागिता वो दर्शा सकें। खेलों में भाग लेने से सिर्फ उनका शारीरिक संतुलन ही नहीं बल्कि उनका मानसिक संतुलन भी बना रहता है। जहां खेल एक तरफ आपको शारीरिक हष्ट-पुष्ट स्वास्थ्य देते हैं, वहीं खेल मानसिक विडंबना से निकलने का भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके साथ ही सामाजिक और वार्तालाप या संवाद कौशल को सुधारने में खेल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नियमित रूप से खेल खेलना एक व्यक्ति को बहुत सी बीमारियों और शरीर के अंगों की बहुत सी परेशानियों, विशेष रूप से अगर हम बात करें जो वजन, मोटापा या हृदय संबंधित बहुत सारी बीमारियों से हमें बचा सकता है। सो बच्चों को भी हमें खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको कभी भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। एक बच्चों और माता पिता हम सब में ही एक इस चीज को लेकर गलतफहमी है कि खेल और स्पोर्ट्स सिर्फ केवल शारीरिक रूप से ही हमें स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये हमारी मानसिक तंदुरुस्ती और इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे लाभ हैं। कहीं ना कहीं खेल और अच्छी शिक्षा दोनों ही एक साथ एक बच्चे के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। दोनों को ही स्कूल और कॉलेजों में बच्चों को आगे बढ़ाने और विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए समान प्राथमिकता देनी चाहिए। खेल का अर्थ न केवल शारीरिक व्यायाम है, हालांकि इसका अर्थ विद्यार्थियों की पढ़ाई और एकाग्रता स्तर को बढ़ावा देना भी है। अगर हम अपना तनाव या किसी भी समस्या को खेल के द्वारा अगर उस चीज को हम वहीं पे इसका समाधान कर लें तो हमारा जो एकाग्रता का एक अवधारणा है, एकाग्रता की जो हमारी क्षमता है वो दुगनी हो जाती है। सो एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का आचरण होना बहुत जरूरी है और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन तभी आचरण कर सकता है जब हमारा मन के साथ शरीर के साथ साथ हमारा मन भी स्वस्थ हो। और मन को स्वस्थ रखने के लिए आपका शरीर स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। अगर हम केवी विद्यालय के स्तर पे बात करें तो केवी विद्यालय के स्तर पर भी बहुत सारे खेल से संबंधित प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिनसे बालकों को और साथ ही साथ अध्यापकों को भी खेल के प्रति और उनसे होने वाले सकारात्मक लाभों के प्रति भी जानकारी मिले और वो उनका फायदा उठा सकें। फिट केवियन इसी तरीके की एक शुरुआत है जो कि केवीएस स्तर पर शुरू की गई है, जिसके द्वारा बच्चों को खेलों के बारे में, व्यायामों के बारे में और विभिन्न प्रकार की खेलों से संबंधित जुड़ी जानकारियों के बारे में बताया जाता है। अब यहाँ सवाल जो उठता है कि खेल किस प्रकार हमारी तंदुरुस्ती और हमारी मानसिक हालत के लिए सहायक होते हैं। बच्चों, ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम बहुत समय या बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाते हैं या हम उस चीज में चल रहे होते हैं। सो इस चीज को कभी आप अपनी जिंदगी में उतार के देखिएगा जब आप बहुत ज्यादा किसी तनाव में हो और उस समय अगर आप अपना मन लगा के या अपनी मन की इच्छा के विरुद्ध जाके भी अगर आप अपने आप को खेलने के लिए या आप किसी पूरी तरीके से किसी शारीरिक गतिविधि में आप अपने आप को लगाने का प्रयास करेंगे सो अंदर से आपको एक संतुष्टि प्रदान होती है और वो संतुष्टि कहीं ना कहीं हमारे मानसिक स्वास्थ्य को एक महत्वपूर्ण भूमिका देती है। जहां आज इस महामारी के कारण हमारे हर तरीके की जो चिंताएं हैं हमारे सामने आ चुकी हैं, वहीं आपको इसका एक सकारात्मक पहलू भी देखना चाहिए। सकारात्मक पहलू ये है कि इन बीमारियों से बचने के बहुत सारे उपाय हमारे पास हैं जिनको कि हम बिना अस्पतालों में जाए भी कर सकते हैं और वो उपाय आपके पास हैं शारीरिक व्यायाम। निरंतर आप सुबह शाम अपनी एक वॉक करें या इसके अलावा जो भी आप शारीरिक गतिविधियां कर सकते हैं वो जरूर करें। खेल हमें सिर्फ और सिर्फ किसी एक प्रकार के विकास के लिए ही लाभान्वित नहीं करता है। खेल हमें संपूर्ण व्यक्तित्व को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
शरीर का स्वास्थ्य पूरे जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के लिए मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य भी बहुत आवश्यक है। खेल खेलने से उच्च स्तर का आत्मविश्वास हमारे अंदर आता है। खेल हमें अनुशासन सिखाता है और जो अनुशासन हमें जिंदगी के हर पहलू पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बच्चों को और अभिभावकों को खेल की इस जरूरत को सिर्फ समय व्यतीत करने का कारण ना समझ करके इसको एक संपूर्ण विकास का एक माध्यम समझना चाहिए और बचपन से ही हमें अपना एक समय, एक निरंतर समय, चाहे भले ही आप किसी भी व्यावसायिक रूप से आप किसी खेल को ना सीखें या ना उसमें जाएं, लेकिन खेल से जुड़े रहें। खेल खेलने की कोई उम्र या आपकी कोई एक स्तर नहीं होता है। खेल को हम किसी भी समय अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हम उसको प्रयोग में ला सकते हैं। खेल बहुत प्रकार के हो सकते हैं, उनके नाम, खेलने के तरीके और उनके नियमों में फर्क होता है। आप कुछ जो महत्वपूर्ण खेल हैं उनके आप नाम जानते होंगे। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, दौड़, रस्सी कूद, ऊंची और लंबी कूद, डिस्कस थ्रो, बैडमिंटन, तैराकी, बहुत सारे खेल हैं। खेल शरीर और मन, सुख और दुख के बीच संतुलन बनाने के द्वारा लाभ और हानि को ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये मेरा आप सभी से आखिर में एक निवेदन है कि आप कुछ घंटे नियमित रूप से खेल जरूर खेलें, चाहे वो एक साधारण इवनिंग या मॉर्निंग वॉक हो सकती है, पर खेल से जुड़े रहें ताकि आपका संपूर्ण व्यक्तित्व एक संपूर्ण तरीके से, एक लाभान्वित तरीके से खेल से जुड़कर आगे की तरफ वो बढ़ता रहे। आप सभी को एक बार फिर से खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले उनके पर बोलते हैं। वो अक्सर रहते हैं खामोश, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार माननीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रबुद्ध श्रोतागण। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस भारत देश में प्रत्येक वर्ष बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अपितु जब पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में अपने राष्ट्रीय खेल दिवस को भूल जाना हमारे लिए कतई उचित नहीं है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिरकार हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते क्यों हैं? आज कुछ ऐसे ही सवालों और उनके जवाबों को लेकर मैं प्रस्तुत हुई हूँ। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व जैसा है, जो कि प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह पर्व भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी माननीय मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो कोरोना की वजह से लोगों की दिनचर्या काफी हद तक बदल गई है, जिसके कारण लोग बस कुछ ही चीजों तक सीमित रह गए हैं। जैसे कि लोग अपना अधिकतम से अधिकतम समय सोशल मीडिया पर व्यतीत कर रहे हैं और उससे मिल रही जानकारी उनके सीधे मानसिक स्वास्थ्य पे असर डाल रही है। वैसे तो इस बात की पुष्टि करने के लिए हमें किसी साक्ष्य या परिमाण की आवश्यकता नहीं है कि जो मनुष्य शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ है वो किसी भी महामारी, किसी भी बीमारी से अच्छी तरीके से लड़ सकता है, और यही बात हमने कोरोना काल में भी ज्ञात किया है। अतः हमारे लिए मानसिक और शारीरिक तौर पे स्वस्थ होना अनिवार्य है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत की संस्कृति जैसे योग कोरोना काल से पूर्व भी पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, और आज सारे स्वास्थ्य सलाहकार बस एक ही बात की ओर संकेत करते हैं, वो है प्रतिरक्षित प्रणाली को मजबूत बनाना। प्रतिरक्षित प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए वर्तमान समय में हम अपने घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, जिम, पार्क आदि जैसी जगहों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, परंतु हम अपने घर में ही रहकर योग, व्यायाम से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों,
वर्तमान समय में हमारा सात्विक भोजन, योग और अपने ही बाग बगीचे में प्रतिदिन टहलना अनिवार्य है। दोस्तों, हमें कोरोना से हारना नहीं है, हमें उसका डटकर सामना करना है। और इस कदम को उठाने के लिए, इसके परिणाम तक पहुंचने के लिए हमें अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। और इस काल में हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखकर चलना होगा। हो सकता है हम दूर दूर हों, परंतु इस लड़ाई में हम सब साथ हैं। क्या खूब किसी ने कहा है, मुश्किलों से डरकर भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से डरकर भाग जाना आसान होता है। हर एक पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के सामने पूरा जहान होता है। तो आइए आज हम सभी प्रण ले कि हम घर में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, योग करेंगे, व्यायाम करेंगे और कोरोना का डट कर सामना करेंगे। धन्यवाद। Heartiest greeting to everyone who is watching this virtual event of National Sports Day, which is being celebrated all across the nation to commemorate the birth anniversary of the hockey wizard, Major Dhyan Chand. I find myself lucky to express my views on the topic COVID-19 fitness at home, an optional topic which focuses on the current need to stay fit and healthy during this current pandemic. The world suddenly stopped when it came to know about the novel coronavirus or COVID-19, a global pandemic that has almost taken 6 lakh lives. First came to notice in Wuhan, China. Global economies got disturbed. People lost their jobs. There is no food. School, colleges and other education institutions have been closed since March 2020. In short, novel coronavirus shook the world from top to bottom. But it gave us a lot of free time. So, one of the things we could do was try and remain healthy. We could do exercises in our homes like push-ups, pull-ups, sit-ups, etc. to strengthen ourselves. And in addition to that, we can eat healthy and keep our immune system strong. These are some benefits of the exercises. First, stress and anxiety relief. Stress and anxiety relief are rising in the current pandemic, and it can lower the immune response. Exercising releases chemicals in our brain like serotonin and endorphins, which can help in improving your mood and helps in reducing the risk of depression. Second, bone muscle balance and flexibility. PA also improves bone and muscle strength, increases balance and flexibility. It is important for everyone, especially older adults, as it can prevent the risk of injury and fall. As for children, it aids with growth and development. Now I conclude my speech with few verses. Yes, we are sailing through turbulent waters, but what if we develop robust pores? What if we vindicate our physical mettle through yoga, push-ups and aerobics in scores? Stay fit, stay healthy. Jai Hind, Jai Bharat. नमस्कार, मैं डॉक्टर विकेश कुमार शर्मा, केंद्रीय विद्यालय नगरोटा का पूर्व छात्र हूं। मैं आप सभी को नेशनल स्पोर्ट्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज एक महान शख्सियत मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है और हम उसे नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। वह ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने इंडियन हॉकी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दोस्तों, स्पोर्ट्स सिर्फ रिक्रिएशन और अम्यूजमेंट का साधन नहीं, बल्कि इससे हमारी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है। कहते हैं स्वस्थ मन का वास एक स्वस्थ शरीर में होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें रिकमेंड करती है कि हमें रोजाना 30 मिनट तक एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स करना है, नहीं तो हम बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज, कार्डिक प्रॉब्लम, स्ट्रोक, कैंसर, ओबेसिटी और बहुत सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमारी एजुकेशन का एम ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी है और हमारी पर्सनैलिटी तभी डेवलप होगी जब हम फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली डेवलप होंगे।
और स्पोर्ट्स इस मकसद को पूरा करता है। स्पोर्ट्स से हमारे शरीर के सारे ऑर्गन एवं सिस्टम अच्छी तरह से कार्य करते हैं और हम बीमारियों से दूर रहते हैं। स्पोर्ट्स करने से हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग करने एबिलिटी टू वर्क इन ग्रुप, लीडरशिप क्वालिटी, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, डिसिप्लिन, मेंटल टफनेस, स्ट्रॉन्ग विल पावर, सेल्फ कंट्रोल डेवलप होते हैं और ये क्वालिटीज आपको एक सक्सेसफुल इंसान बना सकती है। दोस्तों, स्पोर्ट्स में बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी हैं। टीचिंग प्रोफेशन में और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में, कोचिंग में, स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज में, गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज भी स्पोर्ट्स पर्सन को रिक्रूट करती हैं, जैसे आर्मी, नेवी, पुलिस और प्राइवेट एजेंसीज जैसे टाटा ग्रुप्स, ओएनजीसी, रिलायंस और बहुत सारे ऐसे और भी ग्रुप्स जो हैं स्पोर्ट्स पर्सन्स को रिक्रूट करती हैं। स्पोर्ट्स करने से हमें एडमिशन, जॉब, स्कॉलरशिप में भी बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। दोस्तों, स्पोर्ट्स को एज ए कैरियर भी आप चुन सकते हैं। विराट कोहली, साइना नेहवाल, सचिन तेंदुलकर, अभिनव बिंद्रा, हेमा दास, आपने सुने होंगे ये नाम, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस हैं। दोस्तों, आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं जिसमें आप स्पोर्ट्स को लगभग 1 घंटा दें। स्पोर्ट्स को अपनी डेली एक्टिविटीज में शामिल करें, ये आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेगा। जब भी मेरी लाइफ में मुश्किलात आती हैं, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, तो मैं स्पोर्ट्स अचीवमेंट को देखता हूं, अपनी ट्रॉफीज को देखता हूं, तो उससे मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जिससे मैं जो भी हडल्स होती हैं उसको इजीली क्रॉस कर देता हूं और अपनी मंजिल तक पहुंचता हूं। फ्रेंड्स, ये कोविड-19 का टाइम चल रहा है। अब घर में रहकर एक्सरसाइज कीजिए, अब योगा कीजिए, तनाव मुक्त रहिए, अच्छी बैलेंस डाइट लिए और जिससे आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी। अंत में मैं प्रिंसिपल सर जी का, अपने गुरु अमरीक सर जी का, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स का, अपने फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस ऑनलाइन वेबिनार में इनवाइट किया और मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।